Good morning, all of you. In this part, we will take some queries about the generation and the reaction of the carbenes. One of the students asked me a question about the reaction, and in that particular reaction, first of all, the carbene will generate and they are further get involved in the reaction. So what's the question? Let's see. There is a pentagon having two double bond, means that is a cycloalkene, and the reagents are CHBr3, and there is also a base BuO negative is butoxide. There may be something positive ion also, which is not shown in that particular question, which was sent to me by a particular student. And a substance is formed, a product is formed, that is A, that is stable one. कोई stable product ही बताएं. So what's the mechanism of that particular reaction? In the first step of reaction, we will write the tribromomethane in the open form like this, Br. Here is also Br, third Br. The valency of carbon is 4, so fourth one is the H, and the reaction takes place in presence of that negatively charged species, that is the tertiary butoxide, or simply the butoxide ion, and the better base will be the tertiary butoxide ion. Here is the butoxide ion, potassium butoxide. That butoxide ion will donate their electron pair to the H atom, so it here acts as the base. After taking these two electrons, the H atom will left their electron towards the carbon atom, and the Br atom will take away both the electrons of the bond, result in the formation of a carbene. Here is a carbon. There are two Br. One of the orbital becomes vacant, and the other orbital have both the electrons. देखो जो C और H के बीच जो बॉन्ड था उसके तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए. There are two other bonds, Br and the Br, and the one orbital is vacant one. ये vacant है जो कार्बन और Br के बीच में था. तो means carbenes are formed, and that particular carbene here thus formed is the singlet carbene. ये आपकी singlet carbene बनी है यहाँ पे, क्योंकि आप मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो इस कार्बन की कितनी आएगी. यहाँ पे फार्मूला आपने पढ़ा है मल्टीप्लिसिटी का, 2s + 1. स्पिन की वैल्यू यहाँ पे 0 है, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, 2 multiplied by 0 + 1 is equal to 1, so called singlet carbene. So that's the first step. In the next step, the reactant. What is the name of that reactant? Because there are the 5 carbon atoms, so it is the pent, 2 double bond, so called the penta. ये लगा देंगे आप. नंबरिंग स्टार्ट कर दें आप, 1 2 3 4 in the fifth one. So double bond is in between the 1 and the 3, so penta 1 3 diene. Because the compound is cyclic one, so also write cyclo before the penta, so called the penta cyclopenta 1 3 diene is the reactant. And here the carbene act as the electrophile. Carbene here act as the electrophile because their octet is incomplete. It can take more electron pair to complete their electron.
to complete their octet. So CBr2, there are 2 electrons. Now the carbene react with that cyclopentadiene in 2 ways, either the homolytic fission or the heterolytic fission. If these 2 electrons of double bond get shifted towards one of the carbon atom and donated towards the carbene, because the carbene is an electrophile, these two, the carbon of the carbene acquires the negative charge after accepting these 2 electrons from the double bond of the alkene. Further, the carbon atom number 1 of the alkene acquires complete positive charge after shifting of these 2 electrons. So from where it will get the electrons? It will acquires the electron from the carbene. These 2 electrons of the carbene get shifted towards the carbon atom number 1, means the rearrangement of the electron takes place. Rearrangement of the electrons takes place in such a way. Here is the carbene, ये कार्बन, ये यहाँ पे Br आप दोबारा से उसी टाइप से शो कर देंगे. यहाँ पे हमने ये शो किए 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो 1 2 फ्रॉम द कार्बन एटम नंबर 2, जो कार्बन एटम नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन्स थे. ये हमने वो 2 इलेक्ट्रॉन शो किए जो आपके कार्बिन्स वाले कार्बन के थे, जिनसे ये न्यू बॉन्ड इधर बन गया. तो 1 बॉन्ड ब्रेक हो गया, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया. 2 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड. कार्बिन के साथ देखो 2 सिग्मा बॉन्ड नए बन गए. ये सच हमने शो कर दिया यहाँ पे. ये आपका यहाँ पे Br है, 2 Br लग गए यहाँ पे, तो ये आपका इंटरमीडिएट बन गया. अब ये इंटरमीडिएट बनने के बाद फर्दर, क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज ए 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर. अब रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ से. रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? वो कार्बन जिसके ऊपर आपके Br लगा हुआ है, उससे नेक्स्ट देखो अल्फा पोजीशन, उससे नेक्स्ट कौन सी पोजीशन होगी बोलो? ये बीटा पोजीशन. अब रिंग एक्सपेंशन कैसे हो? रिंग एक्सपेंशन कुछ इस टाइप से होगा कि देखो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें तो डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, हमें तो 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए एक ही तरीका हो सकता है. देखो वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है, वन ऑफ द वे इज दैट कि रिंग एक्सपेंशन कैसे हो. बताओ आप कैसे हो सकता है? यहाँ पे ध्यान से सोचें और मुझे बताएं. There are 2 beta position, alpha, beta. Next one is also there is a beta position. This is also a beta position with respect to that particular alpha. Now there are the 2 type of ring. One is the 5 member ring, other one is the 3 member ring, cyclopropane ring. And that particular cyclopropane ring has very high angle of strain. आपने बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी है, उसके अंदर आपने देखा था कि इसके अंदर हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन है. So now the alpha beta cleavage takes place in that cyclopropane part. Cyclopropane वाला जो पार्ट है, इसमें अल्फा और बीटा के बीच में क्लीवेज होगा. And these 2 electron are shifted towards the beta. बीटा की तरफ जाके और ये देखो ये शिफ्ट हो जाएंगे and alpha atom will acquires the positive charge. ये बात आपको ध्यान रखनी, हमेशा ही ऐसा होता है. ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से देखो ये जो कार्बन है जिसके ऊपर Br है, इसके पहले से 4 बॉन्ड आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4. वो कार्बन जिसपे 2 Br हैं, उस कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड हैं. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अल्फा और बीटा के बीच के देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? बीटा की तरफ जाएंगे और उस कार्बन जिसके ऊपर Br अटैच है उधर शिफ्ट हो जाएंगे. वहां पे डबल बॉन्ड और आ जाएगा, जिसकी वजह से वन ऑफ द Br एटम विल लीव विद बोथ द इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज द सिस्टम. देखो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमारी बनी, देखो वो कुछ कैसे बन गई. ये 5 मेंबर रिंग रिमेन इंटैक्ट रहा, देखो इसी टाइप से. देखो इतना पार्ट जो हम आपको शो कर रहे हैं, या ब्रेक हो गया. 5 मेंबर रिंग of 5 मेंबर नहीं रहा, क्योंकि वन ऑफ द बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा अंडरगो क्लीवेज. देखो ये टूट गया यहाँ से, और जो ये अल्फा पोजीशन थी, देखो ये अल्फा, इस अल्फा कार्बन एटम के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. और नया बॉन्ड किसके साथ बन गया? देखो यहाँ पे ये नया बॉन्ड बन गया यहाँ पे.
तो वो कार्बन जिसके ऊपर कौन अटैच थे, 2 Br, अब उसके ऊपर सिर्फ एक ही Br रह गया। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो ये कार्बन है इसका जो नया बॉन्ड है वो बोलो किसके साथ बना, यहाँ पे देखो ये बीटा के साथ, देखो ये बीटा कार्बन था, अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो चुका है, वहां पे डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन अल्फा वाले कार्बन और वो कार्बन जिसपे Br उसके साथ तो अभी बॉन्ड है ही, देखो कोई ये बॉन्ड तो है ही, ये तो एज सच रहेगा, ये बॉन्ड एज सच है। तो नाउ ए 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड। अब एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बन चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाउ देयर इज वन मोर डबल बॉन्ड जो अभी तक हमने शो नहीं किया, देखो यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड। अब इसको, अब जो एक कार्बन है, द कार्बन विच हैज द पॉजिटिव चार्ज नाउ बिकम्स मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। So how the positive charge of that carbon atom can be neutralized? The next carbon with respect to that carbon atom having the positive charge, देखो ये that is the sp3 hybridized carbon atom। देखो इसकी वैलेंसी 4 है, देखो 2H हमने शो कर दिए। Here the reaction occurring in presence of the basic medium, that is Bu butoxide ion। Now that butoxide ion will donate their electron to that any of the H atom, किसी भी एक H को ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। आप इसको देते हुए शो करें। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन और H के बीच के, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार्बन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। आप उसकी तरफ इसको डोनेट करते हुए दिखाएं, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे इस H को लेके चला गया। अब हम इसको देखो दोबारा से स्ट्रक्चर को लिखते हैं। देखो ये बीटा वाली पोजीशन जो हमने बिल्कुल ऊपर दिखाया, देखो जो बीटा था, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा बॉन्ड हम कब शो करते हैं। ये सिंगल, ये बीटा के इधर बोलो कैसा बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे बोलो कौन अटैच है, यहाँ पे देखो ये Br अटैच है। ये नीचे ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये नीचे सिंगल बॉन्ड। ये वो कार्बन जिसे आप अल्फा कह रहे थे और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब ये H हटने से यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड आ गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया है इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। नाउ द फाइनल स्ट्रक्चर इज bromobenzene and it is an aromatic compound। bromobenzene आपका फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। ये एरोमेटिक है इसलिए मोस्ट स्टेबल है। आपने पढ़ा था हक्कल रूल के अकॉर्डिंग, according to the Huckel rule, which contain 4n plus 2 pi electrons, which contain the 4n plus 2 pi electron in the cyclic conjugation, that particular compound will be the most stable। वो compound सबसे ज्यादा stable होगा। आप इस बेंजीन में देख सकते हैं, इसके अंदर 4n plus 2 pi के अकॉर्डिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो आंसर कितना आता है बोलो इसका 6। और साइक्लिक कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन के अंदर अगर हम CHBr3 ट्राइब्रोमोमीथेन डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, क्योंकि बेस का काम कर रहा है, बिकॉज इट डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द H एटम इन द फर्स्ट स्टेप विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बीन। तो आपने क्या देखा इन द फर्स्ट स्टेप, the tertiary the butoxide ion react with the tribromomethane result in the formation of a carbene, that is the singlet carbene, which act as the electrophile because their octet is incomplete. So in the next step of the reaction, that singlet carbene react with the cyclopentadiene and it undergo the rearrangement reaction। एक rearrangement reaction होती है जिससे आपकी जो structure कुछ ऐसे बनी, which has 2 ring, one is the cyclopentane type ring, other one is the cyclopropane type ring। तो cyclopropane type ring has more angle of strain according to the Beer strain theory, so it want to get relief from that strain। तो इसलिए रिलीफ कब होगा, जो साइक्लोप्रोपेन वाला पार्ट था उसी के अंदर हमें जो कार्बन जिसके ऊपर Br अटैच है उसे नेक्स्ट कार्बन को हमें अल्फा कहना पड़ा। वो आप ऊपर भी लिख सकते थे, जहां पे हमने बीटा लिख रखा है वो आपकी मर्जी है, किसी एक साइड में हमने लिख दिया अल्फा। उस अल्फा के रिस्पेक्ट में 2 थी बीटा पोजीशन, एक तो आपके
पेंटेन रिंग की साइड में और एक साइक्लोपेंटेन वाले रिंग के अंदर, क्योंकि हमें जो रिलीफ हासिल करनी है वो कहाँ से करनी है, हमें साइक्लोप्रोपेन वाले रिंग के अंदर से करनी है, बिकॉज इट इज द हाई एंगल ऑफ स्ट्रेन। तो हमें इसी साइक्लोप्रोपेन रिंग को ही ब्रेक करना होगा, तभी हमें रिलीफ मिलती है। और इसको ब्रेक करने से एक आगे आपने देखा एक 6 मेंबर रिंग क्रिएट हो जाता है। तो फिर क्या हुआ जब हम ब्रेकेज करते हैं, और ये रूल है बेसिक जो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा क्लीवेज टेक्स प्लेस, ऑलवेज द अल्फा बीटा क्लीवेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रिंग एक्सपेंशन। हमने पहले भी अपने एक लेक्चर के अंदर आपको बताया जा चुका है कि जब आपके पास कोई साइक्लोप्रोपेन रिंग होता है तो उसके अंदर अल्फा बीटा क्लीवेज होती है, कोई भी और रिंग भी हो तो अल्फा बीटा क्लीवेज होगी, एंड द इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द बीटा कार्बन एटम, बीटा की तरफ ही वो शिफ्ट होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, और फिर फर्दर वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर कोई लिविंग ग्रुप हो, लाइक हियर द Br। अगर Br ना होता यहाँ पे इस कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो भी उसी की तरफ शिफ्ट होते। तो इस तरह से आपके ये नेक्स्ट स्टेप आ गए जिसमें जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो आफ्टर द creation of positive charge on the alpha carbon atom, that particular carbon atom becomes much more electronegative, और ज्यादा electronegative हो जाता है। So it want to get electron from their adjacent carbon atom. On the right side carbon atom which has the bromine और द डबल बॉन्ड, ये कार्बन आपके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन देंगे ही क्यों, फर्दर उनके पास कोई H भी नहीं है कि वो H से इलेक्ट्रॉन छीन के इस अल्फा की तरफ दे दे। तो जो लेफ्ट साइड में आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम था जिस कार्बन के ऊपर दो दो आपके ये H थे, देखो 2 H, तो वहीं से एक पॉसिबिलिटी थी। इसलिए जो रिएक्शन बेसिक पीडी में चल रही थी तो यहाँ पे जो आपका ब्यूटॉक्साइड आयन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को, और फिर वो दोनों इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट हो गए और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और इस तरह से आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम क्या था, ब्रोमो बेंजीन। तो ये एक क्यूरी थी, एक स्टूडेंट ने जो हमसे पूछी। सो दैट ऑल अबाउट द पर्टिकुलर क्यूरी। तो इस टाइप से किसी भी कोई स्टूडेंट को किसी और को जो भी क्यूरी हो तो वो आप उसी टाइप से मुझे हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर या मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, तो उस क्यूरी को हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।